نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف پھیٹ کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی اپنی خود پسندی میں مبتلا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح سے جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے جو کرتوت، ان میں سے کچھ کا تذکرہ یا کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا مسلمانوں کے سامنے آشکار کر دیا، ان کی کچھ سازشیں اور ان کی کچھ حرکتیں، جس کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ان کے ساتھ گستاخی کا رویہ کرتے،
और फिर जानते बूझते वो इस तरह के मामलात करते। और अल्लाह ताला ने उनके लिए वईद भी इसमें तज़किरा कर दी कि अगर उन्होंने अपनी रविश नहीं छोड़ी तो फिर अल्लाह ताला उनको सज़ा के तौर पर या तो उनके पीठें उनके चेहरे जो है उनकी पीठ के पीछे कर देंगे, पीछे की तरफ मोड़ देंगे, या उन्हें अ, तीन सजाएं यहाँ पर थी। सॉरी, या तो हम उनके चेहरे बिगाड़ देंगे, या उन्हें लौटाकर पीठ की तरफ कर देंगे, या उन पर लानत भेजेंगे, जैसे हफ्ते के दिनों में हफ्ते के दिन वालों पर लानत की गई। तो ये तीन तरह की जो सजाएं हैं अल्लाह ताला ने उनकी उनसे डराया अहले किताब को, खासकर यहूदियों को, कि अगर तुमने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया तो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला दुनिया में भी इस तरह के मामलात कर सकता है, और आखिरत में तो तुम्हारा ठिकाना जो है वो इसी तरह से जहन्नम है। और ये जो कुछ कर रहे हैं ये सरासर अल्लाह पर बुहतान जो है वो बांधने के मुतरादिफ है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सबक जो है वो आयत नंबर 51 से शुरू होता है, और आयत नंबर 51 से भी ऑनवर्ड हम देखेंगे आज के सबक में भी कि यहूदियों के कुछ मामलात को अल्लाह ताला ने तज़किरा करके एक तो मुसलमानों के ऊपर उसकी उनका जो एक राज या उनका जो तरीका वारदात था वो मुसलमानों के ऊपर जाहिर कर दिया, और दूसरा यहूदियों के ऊपर भी कि अगर तुमने इन मामलात में अपनी दुरुस्तगी ना की तो तुम्हारा अंजाम जो है वो बड़ा ही भयानक होने वाला है। और आज के सबक में हम देखेंगे मुख्तलिफ पॉइंट जो है कि यहूदी दो मैटर्स में बहुत ही पीछे थे या बहुत ही बदकिरदार थे। एक मैटर उनका अपना जो अकायद और नज़रियात और अफकार जो हैं उनकी तरफ, कि वो मतलब तौहीद जो है वो उनका इल्हामी जो पैगाम जो उनके नबी और रसूलों के ज़रिए से उन तक पहुंचा वो तो तौहीद है कि शिरक नहीं करना, और फिर अल्लाह की इबादत और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। लेकिन वो तौहीद में भी ना सिर्फ डंडी मारते हैं बल्कि दूसरे बहुत सारे गुमराह के अकायद जिसमें जादू टूना और इस तरह के मतलब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपना रखी हैं। दूसरी बात कि वो नाइंसाफ़ी करते हैं, और नाइंसाफ़ी में वो इस कदर हठधर्मी पर उतर गए हैं कि जब उनको पता चल गया कि उनके अंदर ये सारी सारी बुराइयां मौजूद हैं, उनको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब मुसलमान कौम जो है वो उभर कर सामने आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके दरमियान मौजूद हैं और वो उनको अच्छी तरह से पहचान भी चुके हैं, अब उनकी मुखालफत में वो इस कदर गिर गए, अखलाकी और पस्ती का शिकार हो गए, इस कदर रूहानी तौर पर भी इस कदर गिर गए कि वो कौम जो कि सरीह शिरक में मुब्तला है, जो कि खुले आम शिरक करती है। यहूदी और ईसाई जो है वो बज़ाहिर तो मतलब शिरक की तो कोई शक नहीं, कोई शिरक करते हैं, लेकिन वो खुद कहते कि ये शिरक नहीं है, ये तो अल्लाह के बेटे हैं, या अल्लाह ने हमें इसी तरह से बताया, और फिर शिरक और तौहीद के मानी को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुशरिकीन जो हैं वो तो सरेआम डंके की चोट पर बुतों की पूजा पूजा और इस तरह दूसरी हस्तियों की पूजा करके शिरक करते हैं। दूसरे बहुत सारे जो उनकी गुनाह हैं या बहुत सारी उनकी जो एतकाद की और माशरती खराबी हैं उनके बावजूद अ, उस कौम की उन्होंने हमायत की मुसलमानों के मुकाबले में, जबकि वो जानते थे कि मुसलमान जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये वही रसूल हैं जो जिनका उनको उनको बता दिया गया पहले से, और मुसलमान जो हैं वो राह हक पर हैं, सही मानों में तौहीद पर वो कायम है और सही मानों में अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। उसको जानते बूझते उन्होंने मुशरिकीन की, काफिरों की हिमायत की, काफिरों का हिमायत का ऐलान किया और उनकी मदद की, कौली तौर पर भी और फेली तौर पर भी, जहाँ पर भी मौका मिला वो उन्होंने उनकी मदद की, क्यों गोया वो अपने अपने जो रूहानी मामलात हैं उनमें भी वो डंडियां मारने से बाज नहीं आए, बल्कि ना इंसाफी जो है वो भी वो करते हैं अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के पैगाम के साथ, कि तुम्हें हक जब पता चले तो उसको पहचान कर उसका साथ दो, उसके बजाय वो बातल का साथ देते नजर आते हैं। और इसी बुनियाद पर फिर कल का हमारा सबक जो है वो होगा कि जब यहूदियों के मुआशरती रवैये जो है वो इस कदर बेइंसाफी और हठधर्मी पर मुबनी है, तो उस सूरत हाल में अब मुसलमानों के लिए क्या है आज की
सबक में इंशाल्लाह हम कंक्लूड जो है वो इसी आयत पर करेंगे, आयत नंबर 58 पर, कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हिदायत और रहनुमाई दी कि तुम यहूदियों की तरह से ये गुनाह जो है वो ना करना, यहूदियों की तरह से तुम अपने मामलात मत देखना, अपने मुआशरती और अपने जो दीगर मामलात हैं, बल्कि इनसे केयरफुल रहना। और कल के सबक में फिर उसकी कंटिन्यूशन होगी। तो बहर ये एक एक ओवरऑल ब्रैकेट जो है वो आज के सबक की हमने समझने की कोशिश की, ताकि हम आसानी से आज का पूरा सबक जो है उसको समझ भी सकेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 51 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जो दिए गए एक हिस्सा किताब का। क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, या उन लोगों के बारे में आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते जिनको किताब का एक हिस्सा दिया, अहले किताब, और बतौर खास यहूदी। युमिनून बिल जिब्ती, वो मानते हैं, वो ईमान लाते हैं या वो मानते हैं, बिल जिब्ती, बुतों को, व तागूती, और शैतान को। क्या आपने नहीं देखा ऐसे लोगों को? ये एक अंदाज है बताने का कि देखिए जरा कि ये लोग जो हैं यहूदी, ये ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं जिब्त में और तागूत को, जो कि तागूत और जिब्त को मानते हैं। तागूत और जिब्त, जिब्त जो है यहाँ पर बुतों को मानना जो है वह बुत का उसका तर्जमा किया गया है, लेकिन इसके मानी जो है वो बहुत वसी हैं। और इसी तरह से तागूत के मानी जो है वो भी बहुत वसी हैं। जिब्त जो है, जिब्त दरअसल ओहाम और खुराफात के लिए एक जामे लफ्ज़ है। बुतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा जितनी खुराफात हैं और जितने ओहाम पाए जाते हैं, वो सब का सब जो है वो मजमुआ जो है वो एक जिब्त की शक्ल में उसकी डेफिनेशन है, जिसमें जादू टोने, टोटके, जंतर मंत्रियां, सियारों के ऊपर इंसान की असरात, यानी सियारों को देखकर, सितारों को देखकर जो हिसाब किताब लगाते हैं, फालगिरी करना, गंडे, नक्श, तावीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो जिब्त में आती हैं। जैसे कि बुखारी की एक रिवायत है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिब्त से मुराद जादू और तागूत से मुराद शैतान है। तो इसी तरह से सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत है कि परिंदे उड़ाकर, खत खींच कर, बदखाली और बदशगुनी लेना, ये सब जिब्त हैं, यानी ये सब शैतानी काम है। हर तरह के ऐसे काम जो कि बदअकीदगी की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि इंसान को गुमराह करते हैं, ऐसे मामलात की तरफ उलझाते हैं जिनका ना तो दीन से कोई लेना देना है, ना अखलाकियात से कोई लेना देना है। उसमें ज्योतिष टाने और इस तरह के जितने मैटर हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जिब्त हैं। इसी तरह से तागूत जो है, इसके बारे में हमने पहले सूरह बकरा में हमने डिटेल से देखा था कि तागूत जो है वो दर हकीकत हर वो बातिल कुव्वत और निज़ाम है जिसकी इताअत करने पर लोग मजबूर हों, और अल्लाह के इताअत के मुकाबले में उन्हें उस फर्द या इदारा या हुकूमत को इताअत करने पर मजबूर कर दिया जाए। या जब तो तागूत वो भी हो सकता है शख्स जो, जिसकी हम पैरवी करते हैं ये जानते हुए भी कि वो सही रास्ते पर नहीं है, वो एक गलत रास्ते पर चल रहा है, वो एक ऐसे अकायद पर और नज़रियात का हामिल है जो कि इस्लामी नज़रियात और अकायद नहीं है। इसके बावजूद उसके पीछे चल कर रहना, उसके जेर असर आ जाना, तो इस सूरत में भी वो भी तागूत है। यानी हर निज़ाम, रस्म व रिवाज, शख्सियत, इदारा या कोई भी चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से हटाकर शैतान के रास्ते पर लगा दे, वो तागूत है। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में यहाँ पर फरमाया कि आप इनके बारे में ज़रा जान लीजिए कि आप, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको एक किताब का हिस्सा दिया गया, यानी ये लोग यहूदी जो हैं, उनके बारे में जान लीजिए कि वो जिब्त और तागूत में ईमान रखते हैं। जिब्त और तागूत, अब जिब्त और तागूत आगे जाकर ये खुल जाएगा, जैसा कि तमहीद में भी तज़किरा हुआ कि अगर हम देखें मुशरकीन मक्का की तरफ, तो मुशरकीन मक्का जो है उनके किस कदर फरसूदा किस्म के अकायद और नज़रियात थे। बुतों की पूजा वगैरह, फरिश्तों की पूजा करना, और आग की और इस तरह से पत्थरों दरख्तों की पूजा, ये वो सारा कुछ था। उसके अलावा उनके
उनके जो मुआशरती रवैये जो है वो इस कदर गिरे हुए थे पस्तियों में कि अपनी सौतेली माओं के साथ भी निकाह करते हैं और बेटियों को जिंदा भी दरगोर कर देते हैं, और नंगे होकर वो तवाफ करते हैं। इस तरह से वो मुआशरती मामलात में गिर चुके हैं, इतनी वो गिरी हुई हरकतें करते हैं। इसके बावजूद आगे जाकर खुलेगा जब ब्रैकेट के वो भी सारे जिब्त में आते हैं। और इसी तरह से तागूत जो है, जितने शैतानी अमाल हैं या जितने मामलात जो शैतान की तरफ लेके जाते हैं वो सारे के सारे तागूत हैं। तो ये अहले किताब जो हैं या यहूदी जो हैं वो बुतों यानी जिब्त और तागूत में ईमान रखते हैं या उनको मानते हैं। वह यकूलूना, और वो कहते हैं लिल्लाजीना, उन लोगों की निस्बत या उन लोगों के बारे में, काफरू जिन सब ने कुफर किया। और वो काफिरों के बारे में कहते हैं, यानी ये काफिर वही मुशरिकीन मक्का जिनके बारे में वो कहते हैं हा उलाई अहदा मिनल्लजीना आमनु। ये ये वो लोग हैं जो ज्यादा हिदायत फैला उन लोगों की निस्बत आमनु, जो कि ईमान लाए, सबीला रास्ते के लिहाज से, यानी एक अकीदा, एक नजरिया, एक अफकार या एक जो तरीका है जिंदगी गुजारने का, उस एतबार से ये काफिर जो है, ये मुशरिकीन मक्का जो है, ये उन लोगों से बेहतर है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। यानी किस तरह से हठधर्मी है ये कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में वो इस कदर गिर गए कि एक ऐसी कौम जो कि एक सरीह गुमराही में मुब्तला है और इंतहाई पस्ती का शिकार है हर मामले में, अपने रूहानी मामलात में भी और अकायद के मामलात में भी और माशरत के मामलात में भी, उनको वो सपोर्ट करने के लिए रहते हैं कि रेडी हैं, लेकिन मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए वो रेडी नहीं है। अगर इसी बात को हम आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज भी हमें एग्जैक्टली यही सिचुएशन कि जितने काफिर हैं वो सब के सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और यहूदी और ईसाई जो है वो जानते हैं कि मुशरिकीन जो हैं, बहुत सारी मुशरिक कौमें जो हैं जिनको वो मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद है उनके साथ, जबकि वो जानते हैं कि वो हक से या तौहीद से बहुत दूर हैं। और अफसोस के साथ कि अगर हम अपने मुसलमानों में या अपने गिरेबानों में झांके तो वहां पर हमें इसी तरह की कोई तस्वीर जो है वो नजर आती है कि आज भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिब्त और तागूत को हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके साथ भी हम इस्लाह करने के लिए, जिसके साथ भी हम समझाने बुझाने के लिए बात करें, जो बात करें तो ऐसे लगता है जैसे वो हमसे कहीं ज्यादा जानता है, लेकिन वो उस तागूत में और इस जिब्त में ऐसा गिरफ्तार है कि वो उससे वापस निकलने को रेडी नहीं होता। तो हमारे अपने रवैये जो हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर नजर षानी करने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जिब्त और तागूत के पीछे चलने वाले के लिए आगे आने वाली आयत में किस कदर सख्त शदीद अजाब की वार्निंग जो दी है। आगे जाकर हमें आयत में अंदाजा होगा कि किस कदर सख्त अजाब में गिरफ्तार होंगे। आज हमें जो है वो इस बात की ज़रूरत है कि हम जिब्त और तागूत की हर तरह की किस्म जो है जिसको हम पहचानते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम बहाना उज़र करेंगे कल को अल्लाह के यहाँ कि हम तो नहीं जानते थे या हम समझ नहीं सके थे या हमें पता नहीं चला या हमें बताया नहीं गया। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में हर कोई जो है वो कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन इसके बावजूद जो उसके पीछे चलता रहता है उसके लिए फिर अपने रवैये जो हैं वो उनको ज़रूर सुलझाने की ज़रूरत जो है वो रहती है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वही लोग हैं, ये जो जिब्त और तागूत के पीछे चले हुए हैं और जिब्त और तागूत के हामिल लोगों की पैरवी करते हैं, उनके पीछे करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे मुआशी तौर पर हो, चाहे वो मतलब इत्तेहाद हो उनका मुसलमानों के खिलाफ जंग करने का। ये मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद ही है जिसका जिसमें आज मुसलमान जो है वो खूब गए हैं कि मगरबी जो असर है वो उनके ऊपर ऐसा चढ़ चुका है कि वो इस्लामी जो असर है वो उनके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। तो ये भी यानी कि उनका एक यलगार है, ये भी कोई एक उनका हमला है मुसलमानों के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों नहीं इस्लाम के ऊपर, और मुसलमान जो है वो उस हमले में उनके साथ जो है वो शामिल हो गए हैं। तो बहरहाल यही वो लोग थे जिब्त और तागूत का पीछा करने वाले या उसके पीछे चलने वाले या उसको परवान चढ़ाने वाले या उसका साथ देने वाले, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है।
वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर लानत करे अल्लाह ताला, फलन तजिद लहू नसीरा, तो हरगिज नहीं आ पाएंगे उसका कोई मददगार। जिसको अल्लाह ने मलून करार दे दिया, उसका तो कोई मददगार हो ही नहीं सकता। दुनिया में हो सकता है अल्लाह ताला ने छूट दी है, उसकी बुनियाद पर ज़ाहरी एतबार से उनको बहुत सारे मामलात में आसानियां नजर आती हों ज़ाहरी तौर पर, लेकिन जब उनकी पकड़ होगी तो कोई उनकी मददगार नहीं होगा, ना ही उनके अपने अमाल, ना ही वो जिब्त और तागूत जिनके पीछे वो दुनिया की जिंदगी में चलते हुए हैं। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, क्या उनके पास कुछ हिस्सा है बादशाही से, बादशाहत से, ये अल्लाह की बादशाहत से या दुनिया की बादशाहत से? अल्लाह की बादशाहत से तो नामुमकिनात में से है। दुनिया की बादशाहत में भी अगर कुछ उनके पास हिस्सा है तो फायजा, तो तब भी ला युतून अन्नासा, नहीं वो सब देंगे उन लोगों को नकीरा, खजूर की गुठली के गुराफ शगाफ के बराबर भी, खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ भी। ये यहूदी जो हैं वो इस कदर हरीस हैं, इस कदर बुखील हैं, इस कदर वो कंजूस हैं कि मालो दौलत तो दूर, रूहानी एतबार से भी किसी को अपने से बेहतर नहीं देख सकते। अगर उन्हें दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए तो उन दोनों से में से कुछ भी खजूर की गुठली में मामूली शगाफ के बराबर भी नहीं देंगे। खजूर की गुठली नकीरा जो है, वो खजूर की गिटली या खजूर की गिटली जब खोलें तो उसके ऊपर एक हल्का सा बिल्कुल छोटा सा गड़ा जो शगाफ सा होता है, तो ये उसको नकीर कहते हैं, नकीरा कहते हैं। तो नकीरा, इतना भी उनका दिल जो है वो नहीं कि वो ना तो रूहानी एतबार से कि कोई स्पेस ने उन लोगों को जो हक पर कायम है अपने अलावा, और ना ही माली एतबार से कि वो अपना माल जो है ऐसे लोगों पर खर्च करें या दूसरों के ऊपर खर्च करें, अपने के अलावा दूसरों को छोड़कर। ये इस कदर बुखील हैं दोनों मामलात में, क्योंकि दोनों मामलात का तज़किरा हमें पिछली आयत से मिलता है। हम यहसुदून, या ये कि वो हसद करते हैं अन्नासा, उन लोगों से, अलामा आता हम, उनकी उसकी वजह ये है कि वो इस कदर बुखील है, इस कदर हरीस है, और फिर वो अपने बुखल और हिर्स में वो ऐसे लोगों का साथ देने पर मजबूर हैं जो वाज़े तौर पर सरी गुमराही में है। उसकी वजह यह है कि वो हसद में गिरफ्तार हैं उन लोगों से, अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फजलिही, जो दिया उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से। उन लोगों से हसद में ये मुब्तला हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा। और किनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा? वो लोग जो ईमान लेकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फजल करम से नवाजा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले जो मुसलमान हो रहे हैं उस वक्त और आज के दौर में भी, वो दर हकीकत ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हकीकी फजल करम से नवाजा है। क्योंकि अल्लाह का हकीकी फजल जो है वो उसके दीन में ही पिनहा है। तो जिसको अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमा दे, ये गोया कि अल्लाह ताला ने अपना फजल अजीम जो है उसके ऊपर कर दिया। तो ये लोग जो है उसके उसके हसद में गिरफ्तार हैं, और इसके हसद में गिरफ्तार का मतलब ही यही होता है, हसद का मतलब ही यही होता है कि उसको क्यों मिल गया, काश के उससे छिन जाए, काश के उससे वो दूर हो जाए। तो ये हसद की एक एक शदीद ख्वाहिश होती है कि जिसके पास है उससे वो छिन जाए, उसको मिले या ना मिले, जिसके पास है उससे छिन जाए। तो वो इसी की ख्वाहिश करते हैं कि किसी तरह से वो उससे पीछे हट जाए, या वो नेस्तो नाबूद हो जाए, या उन लोग का नाकाम हो जाए, या वो अपना दीन की तरफ वापस आ जाएं उस इस्लाम को छोड़कर। तो ये उनकी हसद की एक बहुत सारी सूरतें हैं। और उन्होंने हसद किया ऐसे लोगों के साथ, हालांकि हकीकत यह है कि फ़कद आतईना आली इब्राहीम अल किताबा वल हिकमत, हकीकत यह है तहकीक के हमने दी आले इब्राहिम को किताब और दानाई, व आतईना हम मुल्क अजीमा, और हमने उन्हें एक अजीम सल्तनत जो है वो भी अता की। हकीकत यह है कि हमने तो आले इब्राहिम को किताब और दानाई और अजीम सल्तनतें जो हैं वो भी अता की आले इब्राहिम में। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो अपना फजलो करम आले इब्राहिम में किया। अब आले इब्राहिम में जो बनी इसहाक है, बनी इसहाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर वहाँ से उनका इसराइल टाइटल शुरू हुआ। तो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने किताबें आए, जितने रसूल आए, वो सारे के सारे बनी इसहाक में से आए।
और उसी में फिर अल्लाह ताला ने अजीम हुकूमतें जो हैं वो भी कुछ नबियों को या कुछ कौमों को अता की, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत जो है वो किस कदर अजीम शान सल्तनत थी। इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जो है वो किस कदर अजीम शान सल्तनत थी। तो अजीम शान सल्तनतें जो हैं वो भी अता की, बड़ी बड़ी उनको कामयाबियां अता की इस कौम को, इस पूरा बनी इसराइल को। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने सारी नबियों को, अपनी सारी हुकूमतों का भी उनका कदर नहीं की, अपने नबियों की उन्होंने कदर नहीं की, किताबों की कदर नहीं की, रसूलों की कदर नहीं की। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जिद और अपनी अना के ऊपर डट के खड़े हो गए, और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जब उसी आले इब्राहिम में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बनी इसहाक को की लड़ी को छोड़कर जब बनी इस्माइल की लड़ी में एक आखिरी नबी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मबूस हुए हैं, तो अब वो उनकी मुखालफत पर उतर गए हैं। इस कदर वो हसद कर पर मतलब इस कदर वो हासद हैं उन लोगों पर, हालांकि उनके ऊपर भी इतनी अजीम शान अल्लाह ताला ने फजलो करम और नेमतें जो है माजी में कर रखी हैं, लेकिन उन्होंने किसी की भी कदर नहीं की। फमिनहुम मन आमन बिही, तो उनमें से जो ईमान लाया। अब पिछली कौमों का जहां पर तज़किरा है आल इब्राहिम में, हजरत इब्राहिम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक, या हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जितने भी यहूदी और ईसाई बने इसराइल जो हैं उनका यहाँ पर तज़किरा है कि तो जो उनमें से ईमान लेकर आए, वमिनहुम मन सद्दा, तो उनमें से जो ईमान लाया उस पर, वमिनहुम मन सद्द अन्हु, और उनमें से जो रुका रहा उससे। कुछ तो ऐसे थे जो उन पर ईमान लाए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन नबियों का साथ दिया, उन नबियों के ऊपर ईमान लाए, उसके ऊपर हमारे मामलात की इस्लाह की, उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त किया। वो बनी इसराइल में से थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नबियों का साथ दिया, लेकिन वो फिर भी तादाद के एतबार से कुछ कम ही थे, काफ़ी कम थे। अक्सरियत में तो उसका इनकार ही किया, क्योंकि नबी के गुजर जाने के बाद जब कौम गुमराह में पड़ी तो उनकी तादाद जो है वो तो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर दोबारा दूसरा नबी आया, कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ इस्लाह हो गई, फिर वापस वही उसी गुमराही में भटक रहे। तो कुछ तो ऐसे थे जो ईमान लाए, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो ज्यादा जो है वो तो रुके रहे कि वो अपने ईमान पर डटे रहते, अपने ईमान को मजबूत करते, अपने ईमान को कायम रखते। तो ऐसे लोग जो रुटे रुके हुए हैं, जो ऐसे लोग जिन्होंने छोड़ दिया अपने दीन को, अपने ईमान को, वकफा भी जहन्नम सईरा, तो काफी है जहन्नम की दहकती हुई आग उनके लिए, उनके लिए जहन्नम, दहकती हुई जहन्नम जो है वही काफी है। तो वो लोग जिन्होंने रोक लिया अपने आप को उस दीन पर चलने से और दूसरों को भी उसमें रोका, तो उनके लिए दहकती हुई जहन्नम जो है वो काफी है। इन्नल्लज़ीना कफरू भी आयातिना, बेशक वो लोग जिन सब ने इनकार किया हमारी आयतों का, सौफा नुस्लीहिम नारन, अनकरीब हम उनको आग में डालेंगे। यकीनन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और उसके दीन का इनकार किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तो वो नाग आर में दाखिल होंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम, जब भी गल और जल जाएगी उनकी जिल्दें, बदलनाहुम, तो हम तब्दील कर देंगे, बदल देंगे उन्हें, जुलूदन, और खानों से या नई खानों से या फ्रेश खानों से, गैरहा, इसके अलावा, उनके अलावा जो पहले खाने थी उनको बदल कर नई खाने जो है वो उनको हम दे देंगे। लियजूकुल अजाब, ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें, ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। ये बहुत ही सख्त आयत में से एक आयत है जो कि बनी इसराइल के या यहूदियों के पस मंज़र में कही गई, लेकिन इसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी हो जाता है। अगर हम इस आयत को इस कंटेक्स्ट से निकाल कर अगर हम ओपन आम आयत के तौर पर रखें कि जिस किसी ने भी अल्लाह की आयत का इनकार किया, कुफर किया उसके साथ, उसको अल्लाह ताला ऐसी आग में दाखिल करेगा, या शदीद आग में दाखिल करेगा, और सजा के तौर पर उनकी खालों को हम जलाएंगे, और फिर उन जलने वाली खालें जो हैं जब झुलस जाएंगी तो फिर हम उनको बदल कर नई खालें जो हैं वो देंगे, ताकि वो अजाब जो है वो उसका मजा चखते रहें। तो यहाँ पर अहले अजाब, अहले जहन्नम जो है उसकी अजाब की शिद्दत का तज़किरा है। इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल जो है सुन रखी होगी यकीनन, कि जिल्द जो है, जो स्किन है, उसके ऊपर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये तो आमतौर पर हम सुनते हैं, लेकिन ये पेन रिसेप्टर्स कितने हैं ये भी तादाद में बेशुमार हैं।
हर इंसान के जिल्द के ऊपर किसी कहीं पर भी सुई के बराबर भी कहीं पर कोई जख्म हो या कोई जलन हो, तो उसकी दर्द जो है वो पूरा जिस्म जो महसूस करता है, पूरा एक सुई के बराबर भी। और अगर पूरे का पूरा जिस्म जो है उसको झुलसा दिया जाए या उसको मतलब इस तरह से आग का अंगारे में डाला जाए, वो किस कदर शिद्दत की आग में या किस कदर शिद्दत की तकलीफ शिद्दत के साथ वो महसूस करेगा। और फिर जब जिल्द जो है वो एक दफा झुलस गई, जिल्द एक दफा झुलस गई, तो उसके ऊपर दर्द की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि दर्द की शिद्दत कम नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी जिल्द जब जलेगी और झुलस जाएगी और उससे जो पेन रिसेप्टर जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे या इनएक्टिव जब हो जाएंगे, तो मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर एक फ्रेश जिल्द तुम्हें पहना दूंगा और तुम्हें दोबारा से उस अजाब में बार बार जो है वो गुजारा जाएगा। और ना जाने हर लम्हे में ये अजाब जो है वो कितनी दफा होगा और किस कदर शदीद होगा। और उसकी शिद्दत का हमें अंदाजा करने के लिए हमें अहादीस में पता पता चलता है कि ना सिर्फ हमारा 5-6 फुट का जो ये जिस्म है उस जो अजाब में मुब्तला होगा, इस जिस्म को हमने अंदाजा किया कि एक 5-6 फुट का जिस्म जो है उसके हर हर पेन रिसेप्टर के ऊपर जब आग का अजाब होगा तो वो किस कदर शदीद शिद्दत की तकलीफ में होगा। लेकिन वही जिस्म जो है अगर 5-6 फुट की बजाय हजारों गुना बढ़ा दिया जाए, रूह तो वही है, जो एक है, जो उसके पास वही रूह जो है वो वहां पर होगी, वो उसी रूह ने पेन जो है वो फील करनी है, उसी जिस्म ने वहां पर। लेकिन वही जिस्म जो है वहां पर हजारों गुना बड़ा कर दिया जाए, तो इसका मतलब है पेन रिसेप्टर जो है या जो ये जो जो सरफेस है जिसके ऊपर अजाब दिया जा रहा है वो किस कदर बढ़ जाएगा। और फिर उस पूरे जिस्म के ऊपर जब अजाब होगा तो उसकी शिद्दत जो है वो हजारों गुना अजाब की बढ़ जाएगी। हम उसका तसव्वुर भी आज की दुनिया में नहीं कर सकते कि वो किस कदर शदीद अजाब होगा। और फिर जहन्नमियों का जिस्म जो है या जहन्नमियों का जो कद काठ है वो इस कदर बढ़ा दिया जाएगा जब उनको ये ऐसी सजाएं दी जा रही होंगी कि मसनद अहमद में एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर के कान की लू और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला होगा। काफिर के कान की लू और कंधे के दरमियान, जो कि तकरीबन 4-5 इंच भी नहीं बनता, 3-4 इंच बनता है आजकल के अगर हम देखें आम गर्दन की जो लंबाई है उस एतबार से। लेकिन वहां पर 700 साल का फासला, इस कदर हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गुना बड़ा जिस्म कर दिया जाएगा। और फिर उस जिस्म के ऊपर अजाब जो है वो दिया गया और वो उसका अहाता या उसका सरफस जो है अंदाजा करने की किस कदर बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रिवायत है, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी जिल्द की मोटाई 3 दिन का फासला होगा। जिल्द की मोटाई का फासला 3 दिन का होगा। जिल्द जो है वो एक 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 हल्की सी तय है जो कि इंसान जिस्म के ऊपर होती है और जिल्द ही पेन को महसूस करती है। जिल्द के अंदर जो बाकी मसल्स वगैरह हैं उनमें पेन जो है वो कम फील होती है। वो जिल्द की मोटाई ना सिर्फ उसकी लेंथ वगैरह जो है वो ज्यादा हो जाएगी बल्कि उसकी मोटाई जो है वो भी इतनी ज्यादा, 3 दिन के फासले पर इतनी मोटी जिल्द हो जाएगी जिसको वो जलाया जाएगा। तो इससे अंदाजा हम कर सकते हैं हम कि वो किस कदर अजाब और किस कदर सख्त सजा होगा। और हजारों गुना जो है वो बढ़कर सजा होगा। और फिर जिल्द के एक एक दफा जब झुलस जाएगी तो दर्द की शिद्दत कम हो जाती है, तो दोबारा से उस जिल्द को अल्लाह ताला तखलीक करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दुनिया की जिंदगी में ही कम अज कम इतने नामा अमाल तो जमा कर लें कि आखिरत में ये तो बड़े बड़े अजाब तो दूर, कि अल्लाह ताला हमें आखिरत के दिन की हल्की सी शिद्दत जो है वो भी अल्लाह ताला उसकी उसके हिस्से भी अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन। तो बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन तमहीद के तौर पर या कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखी कि एक जो जिल्द का जल जाना ये मामूली बात नहीं है। एक एक पेन रिसेप्टर जो है उसके ऊपर जब तकलीफ होगी तो जिल्द की तकलीफ की शिद्दत जो है वो किस कदर बढ़ेगी। और फिर
पूरे जिस्म के ऊपर, और 5-6 फुट का जिस्म वहां पर नहीं होगा, हजारों गुना बड़ा, लाखों यानी करोड़ों गुना बड़ा जो है वो जिस्म होगा। और जिल्द की मोटाई भी किस कदर ज्यादा होगी। और फिर उसके ऊपर जब अल्लाह ताला अजाब देंगे और फिर बार बार बदलेंगे, ताकि ये अजाब की शिद्दत जो है वो कमी ना हो उसमें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इन अल्लाह कान अजीज़न हकीमा, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला बहुत गालिब और बहुत ही हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के फैसले जो हैं बड़ी हिकमत के साथ हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने सब कुछ वादे कर दिया, वो बड़ी हिकमत उसमें छुपी हुई है कि आखिरत में किसी के पास कोई यूज़र और बहाना नहीं होगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि आज वो जानता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, को क्या करना है और किससे बचना है। और जिब्त और तागूत जिसका आज के सबक के शुरू में तذکرہ हुआ, वही आज का मौजू है कि जिसने जिब्त और तागूत के, चाहे वो जानबूझकर उसकी रहनुमाई में पड़ गया, चाहे वो जानते बूझते हुए उससे छुटकारा पाने की कोशिश भी उसने नहीं की, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इस तरह के अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। वल्लाजीना आमन, और वो लोग जो ईमान लाए, हाँ उसके बरक्स वो लोग जिन्होंने जिब्त और तागूत से अपने आप को बचा लिया, जिन्होंने उन दुनियावी मामलात में अपने आप को इस्लाम के मुताबिक अपनी इस्लाह कर ली। वल्लाजीना आमन व अमिलुस्सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ना सिर्फ ईमान बल्कि ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करते रहे। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, तो हम अनकरीब उनको दाखिल करेंगे जन्नात में, बागात में, जन्नतों में, जिनके बीचों बीच या जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा आबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के मुतल्लक या जन्नत के मुतल्लक ख़ास तौर पर बहुत सारी आयत बाद में आएंगी, काफ़ी सारी तफसील जो है वो आइंदा सूरतों में हमें मिलेगी। लहुम फीहा अज़वाज मुतहहरा, उनके लिए उनकी बीवियां होंगी पाकीज़ा। वह नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और उनको एक घने साए में अल्लाह ताला कहते हैं दाखिल कर दिया जाएगा, या उनके लिए घने साए जो हैं वो वहाँ पर होंगे। और जो घने साए किस कदर होंगे, सही मुस्लिम और बुखारी की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा कि सवार यकीनन उसके साए में 100 साल तक चलता रहेगा, फिर भी वो उसको तय ना कर पाएगा। इस कदर बड़ा दरख्त जो है, जिस तरह से यहाँ पर तذکرہ हुआ पिछली आयत में कि अजाब वालों का जिस्म जो है, जिनकी जिल्दें जला रही होंगे, उसका जिस्म जो है वो हजारों गुना, लाखों बल्कि करोड़ों गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह से जो जन्नती हैं उनके लिए जो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं वो भी बेहद कर दी जाएंगी, जो हद निगाह कर दी जाएंगी, बल्कि वो ख़त्म ही नहीं होंगी। जैसा कि ये दरख्त के बारे में है कि जिसका साया इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा दरख्त होगा, या उसका साया इतना घना होगा कि 100 साल तक वो सफर करता रहेगा, लेकिन उस साय को तय तय नहीं कर पाएगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें, अंतु अद्दू, कि तुम सुपुर्द कर दो अमानाती, इमानतें, इला अहलिहा, अपने अहल को। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपनी अमानतें उन अहल अफराद के सुपुर्द कर दो। अब अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट्स के जहाँ पर तذکرہ किया, तो आज के सबक में इब्तदा में हमने देखा कि यहूदी और ईसाई, यहूदी बतौर खास, यहूदियों का तذکرہ यहाँ पर है। तकरीबन सारे मुफस्सिरीन ने यहूदियों की निस्बत से यहाँ पर तذکرہ किया कि यहूदियों ने जिब्त और तागूत की फर्मा बरदारी की, जिब्त और तागूत पर ईमान लाए। ना सिर्फ वो खुद जिब्त और तागूत को मानने वाले हैं, बल्कि जिब्त और तागूत को मानने वाले दूसरे कौमें जो हैं उनका साथ भी, वो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जाना पड़ेगा तो वो उनका साथ देने के लिए भी रेडी हैं। और जिब्त और तागूत ने उन यहूदियों को इस नहज पर पहुंचा दिया कि वो अपना ईमान भी बर्बाद कर बैठे, दुनिया भी बर्बाद कर बैठे, और आखिरत में इस कदर शदीद जहन्नम का अजाब जो है वो उनके लिए तैयार खड़ा है। अब उन्हीं के पसे मंजर में अल्लाह ताला अब मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखो, तुमने अपनी अमानतें जो हैं उनके अहल लोगों के सुपुर्द करनी है। अब यहाँ पर अगर पिछली आम आयत के तौर पर भी इसको देखा सकता है, लेकिन यहूदियों के पस मंजर में अगर देखें तो यहूदियों ने जिब्त और तागूत की किस तरह से पैरवी की। जैसा कि तذکرہ हुआ कि बेशुमार चीज़ें उसमें आती हैं कि यहूदियों ने उनके ऊपर, जब बल्कि आले इब्राहिम का भी तذکرہ हुआ कि आले इब्राहिम में तो अल्लाह ताला ने बड़ी सल्तनतें जो हैं वो भी दी, और उनको किताबें और रसूल भी उनके दरमियान आए, लेकिन उन्होंने उनकी कदर नहीं की। तो अब उन्होंने दर हकीकत
ना तो अपने दीन के साथ इंसाफ किया कि अपने दीन को वो उसी तरह से कायम करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से अल्लाह ने और उसके रसूलों ने या नबियों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने करने का हुक्म दिया या अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, बल्कि उसमें तखरीफात की, अपनी मनमानियाँ की, अपनी मर्जी से जिसको जहाँ पर चाहा बदल दिया, जो जहाँ पर फायदा मिला वहां पर उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको तब्दील कर लिया, जहां पर कुछ गड़बड़ नजर आई वहीं पर उन्होंने अपने दीन को बिल्कुल छुपा ही दिया। बेशुमार मिसालें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जिना के सजा जो है उसके मामले में उन्होंने किस कदर की कि हालांकि उनकी सजा जो है वो रजम है, लेकिन उन्होंने उसको बदल कर ताकि मतलब गरीब और अमीर सब जो है वो उससे खुश रहें, उनके उलमा से और उनके बड़े जो ओहदेदार हैं उनसे, तो उन्होंने ऐसा सॉफ्ट कर दिया कि चलो थोड़ी बहुत सजा भी मिल जाए और मतलब बचत भी हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने तखरीफात की, और उस तखरीफात में फिर आम पब्लिक जो है उन्होंने उन लोगों के को मतलब कह लें कि तकवीत दी जो इस तरह से खुराफात करने में बढ़ बढ़ कर है, अपने उलमा को या अपने जो भी उनके जो लीडर्स वगैरह हैं उनको उन्होंने खुली छूट दी, या बहुत सारी चीजें बजाय इसके कि वो उनको उनके सामने आवाज बुलंद करते या उनको बताते कि ये हमारा दीन हमारा क्या कहता है, उसकी बजाय उन्होंने उनकी पैरवी करना शुरू कर दी। यानी ना सिर्फ वो उलमा उनके वो उसमें मुलव्वस थे, बल्कि आम आवाम जो है वो भी उनके साथ मुलव्वस थी कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने उसको मजबूत किया, उनकी इन बदअकीदगियों को और इनकी इन गुमराह कुन जितने भी मामलात थे, चाहे वो माशरती मामलात हों, चाहे वो उनके मजहबी अकायद और रूहानी मामलात हों, तो आवाम जो है या पब्लिक जो है उन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया। अब उस कंटेक्स्ट में अगर हम इस आयत को समझें तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सुपुर्द कर दो मानते उनके अहल को, यानी वो अफराद जो कि सही मानों में अहल हैं हुकूमत करने के या सरदारी के या लीडरशिप के या मतलब लीडिंग रोल प्ले करने के, उनको तुम मुतय्यन करो या उनको तुम सपोर्ट करो कि वो तुम्हें लीड करें, वो तुम्हें रास्ता दिखाएं, वो तुम्हें मतलब आगे जाकर तुम्हें तुम्हारे लिए सारे काम करें, ना कि ना अहल लोग जैसा कि यहूदियों ने अपने मामलात में किया। वाइदा हकम तुम बैन नासी, और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान अंतहकुमु बिल अदल, तो तुम फैसला करो अदल के साथ। और देखो, जब तुम फैसला करो तो फैसला तुम्हें अदल के साथ करना है, ये अवाम को यहाँ पर कहा जा रहा है, फैसला अदल के साथ। अब वही बनी इसराइल या यहूदियों का तज़किरा किया जाए कि उन्होंने ना सिर्फ अपने मामलात में डंडी मारी, बल्कि जब मुसलमानों के साथ मुखालफत को आई सामने आई तो उन्होंने काफिरों का साथ देना शुरू कर दिया, यानी नाइंसाफी भी की। तो हर एतबार से वो नाइंसाफी करने पर भी तुले रहे। तो इस आयत में दर हकीकत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा कि देखो तुम उन बुराइयों से बचे रहना जिनमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए। बनी इसराइल यानी बुनियादी तौर पर दो गलतियों में मुब्तला हुए। एक गलती ये थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के मनसब मजहबी पेशवाओं और कौमी सरदारी के मर्तबे ऐसे लोगों को देने शुरू कर दिए जो नाअहल, कमजोर, बद अखलाक, बददियानत और बदकार थे। नतीजा ये हुआ कि बुरे लोगों के हाथ में क़यादत उनकी चली गई और सारी की सारी कौम जो है वो तबाह और बर्बाद होगी। अब मुसलमानों को हिदायत एक तो ये दी जा रही है पहले हिस्से में कि तुम ऐसी कोई बात मत करना, बल्कि अपने लीडर जो हैं उनको ईमानदारी से चुनना। आज हम अपना सियासी मंजरनामा देखें, अगरचे सियासत और खिलाफत में काफी फर्क है, लेकिन जो भी सिलसिला चल रहा है उसमें जब वोटिंग का जब के लिए जाते हैं तो क्या उनके जहनों में होता है, मतलब उनके जहनों में बहुत अजीब अजीब बातें होती हैं। किसी के जहन में कोई गली सड़क बन जाएगी, कोई ये नहीं सोचता कि इस्लामी पस मंजर में उसका वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या मयार है, या वो वाकई इंसानियत की खिदमत करने वाला है या सिर्फ पैसे के लेन देन में लगा हुआ है या कोई उसके साथ सियासी वाबस्तगी है। तो आज की दौर में हम बड़ी आसानी से ये सिनेरियो जो देख रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म ये है कि जो अहल ईमानतदार अहल लोग हैं उनको अपनी इमानतें या अपनी हुकूमत या अपनी जो ओहदे हैं जो उनके सुपुर्द करो। इसी तरह से बनी इसराइल की दूसरी बड़ी कमजोरी ये थी कि वो इंसाफ की रूह से खाली थे। इंसाफ के मामले में कि वो दूसरों के बारे में बिल्कुल ही बेइंसाफ थे कि दूसरे कौमें जो हैं और यहूदी के अलावा गैर यहूदी जो हैं वो तो इंसान नुमा हैवान है, उनके साथ जिस तरह से मर्जी मर्जी डील कर लो, कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह ताला तो हमें पूछेगा नहीं, खुली छूट है उनको। तो इस तरह से वो नाइंसाफियां भी करते थे, जबकि अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है कि जो इंसाफ से हट गया
वो जलील ख्वार हुआ दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिसने अदल व इंसाफ कर कायम रहा दुनिया भर, दुनिया की ज़िंदगी में, उसके लिए तो फिर अल्लाह ताला की रहमत के अर्श के साए जो है वो भी होगा। और बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी उनको दी, जो अदल और इंसाफ के साथ अपने आप को जिन्होंने कायम रखा। इन अल्लाह इन अल्लाह ने इम्मा याइजुकुम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी नसीहत करता है तुम्हें भी इसकी। अल्लाह ताला ने जो नसीहतें अपनी की हैं उसके अहकामात के ज़रिए से, और न सिर्फ अहकामात के ज़रिए से बल्कि तागूत और जिब्त वगैरह जो है उसकी निशानदही करके, उसके हर हर छोटे से छोटे पॉइंट की निशानदही करके उसके बारे में भी वजाहत कर दी है, जिसको आज हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इन अल्लाह ने इम्मा याइजुकुम बिही, बेशक अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी नसीहत करता है तुम्हें उसकी। इन अल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अच्छी नसीहत करता है, तुम्हें हुक्म करता है कि तुम्हारे लिए ये रास्ता दुरुस्त है, ये रास्ता तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर जो इख्तियार है वो इंसान का अपना है, वो जिस रास्ते पर चलना चाहे वो उसको चूज कर ले। फिर अल्लाह ताला उसके रास्ते को मॉनिटर भी करता है कि वो कुछ क्या किस रास्ते पर चल रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो इरादा रखता है, क्या नीयत रखता है। अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह से सुनता है। उसकी उसकी वो बातें जो उसके दिल में भी आती हैं, वहम ख्याल में भी आती हैं, और वो बातें जो उसके मुंह से भी निकलती हैं, और खूब अच्छी तरह से देखने वाला भी है। जो वो कमल अमल करता है उसको खूब बारीक बीनी से अल्लाह ताला देख भी रहा है। और यकीनन ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला से छुपाए नहीं छुप सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज के सबक में बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल का हमारा सबक जो है वो भी इन्हीं आयत के पस मंज़र में होगा। और कल की हमारे सबक में ख़ासकर आयत नंबर 59 जो है, जो कि बहुत ही अहम आयत है इस पूरी कुरान मजीद की, बहुत ही अहम आयत में से एक आयत है, जो कि मुआशरत के ऊपर, मुआशरत के हमारे मुआशरती मामलात में या इज्तमाही मामलात में बहुत अहम रोल प्ले करती है। बहर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद, ख़ास रहनुमाई हमारी करे। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में कुछ हमारी परेशानियाँ, कुछ मसाइब, कुछ मुश्किलात, कुछ सेहत के, कुछ कारोबार के, कुछ जॉब्स के, कुछ बच्चों के, वालदैन के, सब अल्लाह ताला सबके मामलात को आसान करे। उनकी हर एक की नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। और दुनिया के रिस्क से अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।